Hello everyone, I am Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today in this lecture, we are going to discuss about the very most important topic from NCN, Computer Networks, and from Unit 1, that is your OSI model. So in this lecture, I am going to discuss about layered task, OSI model, and the functioning of each and every layer. And in the last, we will take the summary with, with each and every layer functioning. So what do you mean by layered task? In the daily life, we will use layer task like concepts of layer, in the example of postal. When we communicate with our friends through postal mail, the process of sending a letter to a friend is based on the layered concept. First of all, sender write the letter and put it in the envelope and dropped it into mailbox. And that letter is first of all, this is the first upper layer, which is supported by lower layers. The letter is carried from mailbox to a office, and after that, the letter is delivered to a courier by the post office, and through the parcel is carried from source to destination. When it reached to the destination, the letters is delivered from the courier to the post office, and after that, from post office to the mailbox of that receiver, and then receiver picked it, removed from the envelope, and read the message. In this way, we will use the concepts of layer in our daily life. Similarly, on the concept of layers, the OSI model is based. So OSI model is the model which is given by ISO, International Standard Organization. It is basically a multinational body which is established in 1947, which is dedicated to worldwide agreement on international standards. An ISO standard that covers all aspects of network communication is the OSI model. So please, this is a misconception that OSI is one organization. No, it is an ISO is an organization which gives the model OSI, Open System Interconnection. It is introduced in late 1970. It basically shows how to facilitate the communication between two different systems without requiring any changes to the logic underlying behind the hardware and software. So that OSI is not any protocol, not it is not an organization. It is basically a model for understanding the designing of network architecture, which is very flexible, which is very robust and interoperable. So OSI is a layered framework. It is based on layered concept for the design of network system that allows communication between all different types of computer system. It tells कि दो different system आपस में दो different device, दो different host, दो different sender and receiver आपस में किस तरीके से communicate करते हैं, वो आप OSI मॉडल की तरफ उस तरफ से देख सकते हैं. So OSI model consists of 7 layers. As you can see, lower layer is a physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and application layer. It is a layered architecture in which first 3 layer is called as user supported layer. It is user supported layer. And below 3 layer is known as network supported layer. And transport layer is basically transport the data from lower layer to upper layer and upper layer to layer. And it also ensure that the data is in the form that upper layer can support, and data is also in the form that lower layer can support. So this is the mediator layer between user and network supported layer. Suppose we want to send the data from device A to device B, which passes through the intermediate node. Intermediate node generally consists of only 3 layers because either it is a router or switch. Router is a network layer device, switch is a data link layer device. But sender and receiver has all the 7 layers. Like the message from sender pass through all the 7 layers, and after that, the transmission medium, it goes to the receiver. It goes to a receiver, and on the receiver side, data goes from down to top. And these are the interfaces. Interfaces. Each interface basically here defines the information and services
particular layer must provide to the layer above it. So interface, the passing of the data and network information down the layer or up the layer can go with the help of these interface only. And what is peer-to-peer network? This is a peer-to-peer process. The process on each machine that communicate with a given layer only are called peer-to-peer process. This is basically a peer-to-peer process. नाउ एक्सचेंज होता कैसे है ओएसआई मॉडल में? जब भी सेंडर डेटा सेंड करता है तो वो आप D7 इज डेटा एट सेवेंथ लेयर विच इज योर एप्लीकेशन लेयर, D6 is your data at presentation layer, D5 is data at session layer. Likewise, these are the data. And when sends a data goes from top to bottom, and at each layer adds a header to it. Likewise, presentation layer also had header to it. But header or trailer, but trailer is added only, and it is not compulsory. Trailer is added at data link layer only. After that, in bits and bytes, at physical layer, data is converted in the form of zeros and one, which is further converted in the form of electromagnetic signals. And वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होके रिसीवर के पास जाएगा. रिसीवर पे डेटा बॉटम टू टॉप फ्लोट करेगा, जिसमें जो आपने हेडर या ट्रेलर ऐड करे थे वो हर एक लेयर पे रिमूव होंगे, और लेयर अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो अपना डेटा फेच कर लेगा. इस तरीके से आपका एक्सचेंज होता है ओएसआई मॉडल के बीच में. सेंडर्स में डेटा ऐड, हेडर और ट्रेलर ऐड होते रहते हैं, और रिसीवर साइड पे हेडर और ट्रेलर को हम रिमूव करते रहते हैं. तो एक एक करके हम एक एक लेयर का फंक्शन देखते हैं कि एक एक लेयर करती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स, जीरोस एंड वंस पे यहाँ पे डेटा होता है. तो बिट्स के फॉर्म में एक हॉप या एक नोड से दूसरी नोड पे डेटा जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो फिजिकल लेयर की होती है. आप यहाँ देख सकते हो कि सेंडर साइड पे डेटा डेटा लिंक लेयर से आ रहा है फिजिकल लेयर के पास में. तो यहाँ पे डेटा बिट्स और जीरोस एंड वन की फॉर्म में है, फिर वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर पे जा रहा है, और फिजिकल लेयर से वो डेटा लिंक लेयर की तरफ जा रहा है. तो अपोजिट प्रोसेस होता है सेंडर और रिसीवर साइड पे. तो उसकी बेसिकली सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है हमें ये देखना है, और एग्जाम में भी बेसिकली आपके यही क्वेश्चन आता है कि हर एक लेयर डिफाइन करिए, उसकी सर्विसेज डिफाइन करें. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरफेसेस एंड मीडियम, बेसिकली द physical layer defines the characteristics of interfaces and medium between the devices and transmission medium. It basically defines the type of transmission medium कि transmission medium का type क्या है. ठीक है. डेटा यहाँ पे जीरोस एंड वंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा. सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द बिट्स, यहाँ पे बिट्स सिंक्रोनाइज होती हैं. ऐसा नहीं कि सेंडर एंड रिसीवर्स बिट को लेने के लिए, मतलब सेम बिट रेट से सेम स्पीड से डेटा भेजे. ऐसा नहीं कि सेंडर बहुत फास्ट भेज रहा है, रिसीवर एक्सेप्ट कंज्यूम बहुत स्लो कर रहा है, ऐसा नहीं होता. सेंडर स्पीड रिसीवर की स्पीड्स मेंटेन रहती है यहाँ पे. लाइन कॉन्फ़िगरेशन मींस कि आपका कनेक्शन पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है आपका, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिजिकल लेयर की है. डेटा रेट, नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकेंड, इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ट्रांसमिशन लेयर की है, सॉरी फिजिकल लेयर की है. फिजिकल लेयर बेसिकली ये डिफाइन करता है कि कितने टाइम तक कि उस बिट का पर्टिकुलर बिट का ड्यूरेशन क्या है, वो कितने टाइम तक आपके मीडियम पे या आपके नेटवर्क तक सरवाइव कर सकती है. नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड वो डिफाइन करता है फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर ऑल्सो डिफाइंस द टोपोलॉजी की वो डिवाइसेस किस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, मैश में है या बस में है या रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, या फिर स्टार टोपोलॉजी में. तो इट ऑल्सो डिफाइंस हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मेक अ नेटवर्क. एंड देन ट्रांसमिशन मोड कि आप जो फिजिकल लेयर ऑल्सो डिफाइन कि आप किस मोड में आप डेटा सेंड कर रहे हैं, सिंप्लेक्स में कर रहे हैं या हाफ डुप्लेक्स में कर रहे हैं या फुल डुप्लेक्स में कर रहे हैं. सिंप्लेक्स में कर रहे हैं इसका मतलब है कि सिर्फ सेंडर सेंड कर सकता है, रिसीवर रिसीव कर सकता है, वन वे कनेक्शन है. हाफ डुप्लेक्स में टू वे कनेक्शन होता है, बट एट अ टाइम या तो या तो एक ही साइड सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, या रिसीवर सेंड करेगा, सेंडर एट अ टाइम एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में होगा. फुल डुप्लेक्स में भी दोनों सेंड कर सकते हैं, पर दोनों सेम टाइम पे सेंड कर सकते हैं. तो ये बताता है ट्रांसमिशन मोड क्या चल रहा है.
Next is data link layer. In data link layer, data comes from network layer on the sender side and it goes to physical layer. Similarly, on the receiver side, it comes from physical layer and goes to network layer. Header and trailer are attached here. There is a reason behind adding header and trailer to your frame here. So it is responsible, like data link, physical layer is responsible for moving bits from one node to another node. Similarly, data link layer is responsible for moving frames from one hop to next hop. Frame basically its first functioning is of framing. So the data link layer divides the stream of bits which is received from the network layer टू अ मैनेजेबल डेटा यूनिट दैट इज नोन एज फ्रेम्स। तो यहाँ डेटा लिंक लेयर पे जब भी हम बात करेंगे तो फ्रेम्स हमेशा यूज होगा। जैसे मैं नेटवर्क लेयर आगे दिखाऊं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें आप देखोगे फ्रेम्स के हम पैकेट्स यूज करते हैं, वैसे ही हम डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स यूज करेंगे। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल मीन्स कि आप डेटा जितनी तेजी से सेंडर सेंड कर रहा है, क्या रिसीवर भी उतनी तेजी से उसको कंज्यूम या एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उस चीज को भी, उस फ्लो को भी इम्पोज, उस फ्लो को भी कंट्रोल करने का काम डेटा लिंक लेयर करती है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल जब एक या एक से ज्यादा डिवाइसेस एक ही लिंक से कनेक्टेड होती है तो कौन किस टाइम पे उस लिंक का कंट्रोल किस डिवाइस के पास होगा, इस चीज का भी ध्यान आपकी डेटा लिंक क्लियर करती है। फिजिकल एड्रेसिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि हेडर अटैच होता है, ट्रेलर अटैच होता है, तो जब हेडर अटैच होता है यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं। फिजिकल एड्रेस इट मींस लिंक एड्रेस, लिंक एड्रेस मींस दैट इज अ मैक एड्रेस, it is of 48 bit. On Ethernet, it is of 48 bit, that is of 6 byte. It is basically imprinted on the NIC card, network interface card of each and every device. तो यहाँ पे जो हेडर में अटैच होता है, हेडर अटैच होता है फ्रेम के साथ, उसके अंदर फिजिकल एड्रेस होता है, किसका, सोर्स का एंड डेस्टिनेशन का, दोनों का फिजिकल एड्रेस होता है। Error control, data link layer also provides the reliability to the physical layer by adding mechanism to detect and retransmit damaged or lost frame. It also uses the mechanism to recognize the duplicate frames. So basically error control यहाँ पे हम किस तरीके से अचीव करते हैं, जो हम ट्रेलर ऐड करते हैं ना फ्रेम्स के एंड में, उसकी हेल्प से हम यहाँ एरर कंट्रोल की, कोई फ्रेम आपको खो तो नहीं गया है, कोई फ्रेम आपका डुप्लीकेट तो नहीं हो गया है, किसी को किसको रिट्रांसमिट करना है जो फ्रेम खो गया है, तो इन सब चीजों का ध्यान भी डेटा लिंक। आप आगे की चैप्टर्स में देखेंगे एरर कंट्रोल की क्या क्या, एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता है, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, तो इसको डिटेल में हम हर एक यूनिट में देखेंगे कि ये हर एक सर्विस की कौन कौन सी टेक्निक्स। दिस इज, अभी मैंने आपको बताया कि डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप, लाइक यू कैन सी व्हेन वी सेंड द डेटा from the source is A and we have to send the data to F, डेटा कैसे जाएगा, A से गया डेटा आपका B पे, ठीक है, B से आपका डेटा गया E पे और E से आपका गया डेटा गया F पे। A to B वन हॉप, B to E वन हॉप, E to F वन हॉप। तो डेटा लिंक लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप डिलीवरी, इट गारंटी द हॉप टू हॉप डिलीवरी। तो next is your network layer. On the sender side, on the network layer, data comes from transport layer and goes to data link layer. Header is also attached here. And on the receiver side, your packet, your data goes to transport layer and comes from data link layer. Network layer is basically responsible for delivery of individual packets from source to host to destination host. अब यहाँ पे हम पैकेट्स की बात करेंगे, जैसे डेटा लिंक लेयर पे हमने फ्रेम्स की बात करी थी, यहाँ पे हम पैकेट्स की बात करेंगे। तो इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कि एक मशीन, व्हेन डिवाइस ए, मशीन बी, ए और मशीन बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ए से बी डेटा प्रॉपरली पहुंच जाए, उसकी डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाए, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा गारंटी होती है आपकी नेटवर्क लेयर की। वन मशीन टू अनदर मशीन, वन होस्ट टू अनदर होस्ट, आपका पैकेट पहुंच जाए, उसकी डिलीवरी हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे इसकी सर्विसेज है लॉजिकल एड्रेसिंग, वहां पे हम फिजिकल एड्रेसिंग मैक एड्रेस की बात करते थे, यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस दैट इज योर आईपी एड्रेस की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ 32 बिट एड्रेस। अगर मैं IPv4 की बात कर रही हूँ तो IPv4 एंड IPv6 देयर आर टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। तो अगर मैं IPv4 की बात करी तो 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है जो हम पैकेट्स के हेडर में अटैच करते हैं। हेडर में आपका सोर्स आईपी भी होगा, डेस्टिनेशन का आईपी भी हम उसमें डिफाइन करते हैं। देन राउटिंग,
अभी मैंने बताया था कि ये आपका जब आपको एक नेटवर्क से नेटवर्क ए में एक डिवाइस है, नेटवर्क बी में दूसरे डिवाइस है, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में आपको डेटा सेंड करना है, आपको पैकेट सेंड करना है, तब रिस्पॉन्सिबल आती है, पिक्चर में आती है नेटवर्क लेयर। बट विथ इन द नेटवर्क आपको एक होस्ट से दूसरे होस्ट के बीच में डेटा सेंड करना है, तब आपका डेटा लिंक लेयर पिक्चर में आती है। तो यहाँ मैं दो डिफरेंट बीच नेटवर्क के बीच में डेटा सेंड कर रही हूँ। बीच में हाल बहुत तो बीच में आपकी ऑब्वियसली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में डेटा सेंड करें, तो बीच में आपके बहुत सारे राउटर्स होंगे। इट इज अ नेटवर्क डिवाइस, राउटर होंगे जिसके थ्रू आपका डेटा होके जाएगा। तो राउटिंग इज, यहाँ पे हम राउटिंग क्या यूज करेंगे कि पैकेट एक राउटर पे गया तो राउटर नेक्स्ट कहाँ स्विच करेगा ताकि वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेटवर्क लेयर की, कि वो राउटिंग राउटिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेटवर्क लेयर। और अलग अलग राउटिंग एल्गोरिथम, अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम फर्दर आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। किस तरीके से राउटिंग होती है, किस तरीके से राउटर पैकेट को राउट करता है आगे कि वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मुझे ए से बी डेटा सेंड करना है, तो सोर्स टू होप टू होप डिलीवरी के लिए डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल है, बट सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में सेंडर साइड पे डेटा आपका आता है सेशन लेयर से और नेटवर्क लेयर को जाता है, वैसे रिसीवर साइड पे नेटवर्क लेयर से आता है और सेशन लेयर को जाता है। उसकी फंक्शंस क्या क्या है? पहली बात तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अभी इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ हम बात करेंगे मैसेज की। मैसेज एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे पहुंचे। नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन की एक मशीन सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन पे मेरा डेटा सक्सेसफुली पहुंच जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क लेयर। बट उस मशीन के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होंगे। एक प्रोसेस, मान लो ये मशीन ए है, इसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को मैं जो मुझे मशीन बी पे जो प्रोसेस चल रहा है उस पे डेटा सेंड करना है। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ मेल सर्विस, जीमेल हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कुछ भी। तो आप वो इस मशीन पे जीमेल खुला हुआ है, उससे मैसेज आपको यहाँ पे भेजना है, दूसरी मशीन बी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उस पे भेजना है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस से एड्रेस एसोसिएट होता है, पोर्ट एड्रेस विच इज ऑफ 16 बिट। एक 16 बिट का पोर्ट एड्रेस हर एक एप्लीकेशन या प्रोसेस के रिगार्डिंग एसोसिएट होता है। तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी बोल सकते हैं और एंड टू एंड डिलीवरी भी बोल सकते हैं। एंड टू एंड मैंने डिलीवरी क्यों बोला कि एंड अभी कोई मशीन एंड नहीं होता, मशीन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा होता है वो एंड होता है। तो एंड टू एंड डिलीवरी के लिए भी आपके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। अब सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मतलब दैट इज योर पोर्ट एड्रेस। तो यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रही है, तो पोर्ट एड्रेस आपका हेडर में आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस अटैच होगा। कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर कैन ईदर बी कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। उससे पहले आप एक सर्विस देखो, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। यहाँ पे जो आपका पूरा बिट्स जो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आ रहा है स्ट्रीम ऑफ बिट्स के फॉर्म में, उसको ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड करती है। और हर एक सेगमेंट, व्हाट अ सेगमेंट, सेगमेंट इज हियर अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, कलेक्शन ऑफ बाइट्स। और हर एक सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस नंबर, एक रैंडम सीक्वेंस नंबर होता है। लाइक इसका सीक्वेंस नंबर 3000, इसका हो गया 3001, इसका हो गया 3002। ऐसे रैंडम सीक्वेंस नंबर हम यहाँ पे सेगमेंट्स को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आपका जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आपको रीअसेंबल करने में प्रॉब्लम ना आए, आपको सेगमेंट्स के अंदर जो बाइट्स है उसको रीअसेंबल करने में प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हम यहाँ पे डेटा को सेगमेंट्स पे डिवाइड करते हैं और उन हर एक सेगमेंट्स को हम सेगमेंट में सीक्वेंस नंबर देते हैं। तो अब ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस भी हो सकता है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है। कनेक्शन लेस में क्या होगा कि ये जो सेगमेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट रीड होंगे, हर एक कोई मतलब किसी का किसी रिलेशन नहीं, इंडिपेंडेंट रीड होंगे, अपना अलग अलग रास्ता पकड़ेंगे। ठीक है, पैक आपका सेगमेंट किस रास्ते से जा रहा है डेस्टिनेशन तक, ये कोई एक फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी जा सकता है। और डेस्टिनेशन पे आउट ऑफ द ऑर्डर भी पहुंच सकता है जरूर, क्योंकि किसी ने एक रास्ता पकड़ा, किसी ने दूसरा रास्ता पकड़ा, वहां पे वो डिले हो गया लेकिन ये जल्दी पहुंच गया, तो आपके डेस्टिनेशन पे ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो पैकेट सेगमेंट्स होंगे वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेंगे।
बट जब कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करती हूँ तो ओरिएंटेड में पहले कनेक्शन आपका स्टैब्लिश होगा, ठीक है, उसके बाद आपका सेगमेंट का ट्रांसफर होगा, और फिर जब कनेक्शन आपका पूरा ट्रांसफर हो जाएगा डेटा का, उसके बाद आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ कनेक्शन कंट्रोल कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर कैन इधर बी योर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। फ्लो कंट्रोल इज सिमिलर टू डेटा लिंक लेयर, कि हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल ऑल्सो, बट यहाँ पे फ्लो कंट्रोल एंड टू एंड परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। Error control is also similar to data link layer. तो transport layer is also responsible for error control. तो error control यहाँ पे process to process की responsibility, process to process हमें ध्यान रखना है कि कोई error ना आए, पूरा का पूरा मैसेज विदाउट एरर फ्री होके आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। एज यू कैन सी, प्रोसेस हर एक डिवाइस पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट लेयर की, होस्ट टू होस्ट मशीन टू मशीन डिलीवरी की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की। नाउ सेशन लेयर, अभी तक जितनी भी सर्विसेज आपको ट्रांसपोर्ट ने दी, नेटवर्क लेयर ने दी, आपको डेटा लिंक लेयर ने दी, फिजिकल लेयर ने दी, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सम प्रोसेसेस, तो सेशन लेयर पिक्चर में आई। सेशन लेयर इज बेसिकली अ नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर, नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर, ठीक है। It basically network dialog controller. It is responsible for establishing, for maintaining, for synchronizing the interaction among communication devices, communication system. So session layer is responsible for dialog control and synchronization. Dialog control का मतलब कि session layer is कि दो सिस्टम डायलॉग में आ पाए, डायलॉग में एंटर कर पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की। मतलब दो प्रोसेस आपस में किस मोड में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो हाफ डुप्लेक्स में कर रहे हैं, क्या वो फुल डुप्लेक्स में कर रहे हैं, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सेशन लेयर। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ आप देख सकते हो, सेशन लेयर क्या करती है, आपके प्रोसेस में बीच बीच में छोटे छोटे चेक पॉइंट्स ऐड कर देती है। चेक पॉइंट्स क्यों ऐड कर देती है? फॉर द सिंक्रोनाइजेशन। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपकी 2000 पेजेस की एक फाइल है, और मैंने हर 100 पेज के बाद चेक पॉइंट्स लगा दिए, क्या इंश्योर करने के लिए, ताकि कि ये मेरे 100 पेज पहले पहुंचेंगे, और फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, फिर 100 पहुंचेंगे, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, एवरी 100, ईच 100 पेज यूनिट इज एक्नॉलेज जब वो रिसीव हो जाएगी। तो अगर मान लो सपोज पेज नंबर पेज नंबर 523 कहीं डैमेज हो गया है या क्रैश हो गया है, तो क्या होगा कि हमें एक्नॉलेजमेंट, फिर हमें एक्नॉलेजमेंट आया, तो हमें कितने पेजेस रीसेंड करने पड़ेंगे? ओनली 501 टू 523, क्योंकि उससे पहले 500 पेजेस का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है। अगर ये चेक पॉइंट्स नहीं लगाओगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे आपका क्रैश हुआ है। तो ये चेक पॉइंट लगाने से क्या हुआ? सिंक्रोनाइजेशन हुआ। इससे सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट लगाने से क्या हुआ? डेटा के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बैठा, हमें पता चला कि हमें कहाँ पे डेटा रीसेंड करना है, कहाँ पे क्रैश हुआ है। Next is your presentation layer. Presentation layer is basically responsible for, so next is your presentation layer. Basically, presentation layer is concerned with the syntax and semantic of the information exchange between the two systems. So in the sender side, in the presentation layer, data comes from application layer and it goes to session layer. Similarly, on the receiver side, data comes from session layer and goes to application layer. So presentation layer is responsible for translation, compression, and encryption. So translation here means कि प्रोसेस, एक प्रोसेस चल रहा है, उसने अपनी वहां प्रोसेस अपनी इंफॉर्मेशन आपका कैरेक्टर के फॉर्म में, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में शेयर करता है। सो सेंडर साइड पे आपकी इंफॉर्मेशन बिट स्ट्रीम से बिट्स के फॉर्म में, तो वो ट्रांसमिट होने से पहले आपकी वो एक्सचेंज कर पाएगी, मतलब इंफॉर्मेशन मस्ट बी चेंज टू बिट स्ट्रीम बिफोर बीइंग ट्रांसमिटेड, बिकॉज सब कंप्यूटर के अलग अलग एनकोडिंग सिस्टम होते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू एनकोडिंग मेथड। तो सेंडर साइड पे हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर पाए अकॉर्डिंग टू सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट, कि सेंडर का फॉर्मेट क्या है, तो और रिसीवर साइड पे भी हम रिसीवर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर पाए। पर जब सेंडर से डेटा जा रहा है,
तो सेंडर फॉर्मेट से, सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट से हम उसको कॉमन फॉर्मेट में ला पाए, जो कॉमन फॉर्मेट है, ठीक है। और फिर रिसीवर साइड पे वो कॉमन फॉर्मेट को हम रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट में चेंज कर पाए। ये पूरा ट्रांसलेशन का काम है प्रेजेंटेशन लेयर का, क्योंकि हर अलग अलग सिस्टम के अलग अलग एनकोडिंग फॉर्मेट्स होते हैं। तो उन एनकोडिंग फॉर्मेट्स के बीच में कनेक्शन, उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बिठाने का काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर का है। Encryption का, encryption means you all know data encryption means when we convert plain text to cipher text. So सेंडर की जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम, और रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन का काम, कि ओरिजिनल की मैसेज को एनकोडेड फॉर्म से वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने का काम, डिक्रिप्शन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का है। कंप्रेशन मीन्स when we reduce the number of bits contained in the information, that is your compression। ये हम अगर मान लो टेक्स्ट भेज रहे, कोई भी ऑडियो भेज रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं, तो उसको कंप्रेस करने का काम, ये भी आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। Next is your application layer, which is of our concern. Basically, it is enables the user, whether it is a human or already software or program, to access the network. It basically provides an interface, user interface and support for services such as email। आप email करते हैं, वो application layer की service है। Like your file, remote file access transfer, ये भी application layer की service है। When we share database management, ये भी application layer की services है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर में, there is a relation of application layer to the user and presentation layer, ठीक है। So there are many applications you can see here. X.500 is basically your directory service. This is your directory service. X.500 is your directory service. Okay. FTAM, file transfer, access and management. This is also one of the application service. Mm. नेक्स्ट है X.400, दिस इज अ मैसेज हैंडलिंग सर्विस, एंड इसी की वजह से आप ईमेल सेंड कर पाते हो, मैसेज हैंडलिंग सर्विस। तो एप्लीकेशन लेयर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द यूजर। तो इसमें पहला आता है एनवीटी, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। दिस इज अ, आपने सुना भी होगा, दिस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर वर्जन of any physical terminals. It basically allow a user to log on to a remote host। जैसे यहाँ पे मान लो एक आपका रूम पे आपका डेस्कटॉप पड़ा हुआ है और कोई भी एक रिमोट होस्ट है, मतलब वो किसी रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है, तो वो एनवीटी की हेल्प से इस यहाँ पे रखे हुए अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, अपने सिस्टम के डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकता है। रिमोट होस्ट को ऐसा बिलीव होगा कि वो अपने टर्मिनल पे, अपने खुद के टर्मिनल पे लॉग ऑन है। तो ये होता कैसे है, ये एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर इम्यूलेशन आपके टर्मिनल का क्रिएट कर देती है रिमोट होस्ट के लिए, ताकि वो उससे बातें कर सके अपनी रिमोट लोकेशन पे बैठे बैठे। दिस इज योर एनवीटी। मेल सर्विसेज, ईमेल करना हो आपको, ठीक है, ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज का काम जो होता है वो भी एप्लीकेशन लेयर का होता है। Directory services, the application basically provides your distributed database sources and access for all the global information about various objects and your various services. Okay. Next is FTA, file transfer access and management. This basically this is a service which allows a user to access files at a remote host. Na, to you can retrieve the file, you can make the changes, or you can read the data, है ना, फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर टू योर फॉर यूज इन। अगर आपको रिमोट कंप्यूटर्स पे कोई फाइल रखी है, उसको आपको रीड करना है, ठीक है, अपने लोकल कंप्यूटर पे उसको आपको एक्सेस करना है, उससे आपको कोई डेटा रिट्रीव करना है, तो आप एफटीएएम का यूज कर सकते हो। नाउ वी कैन सी द समरी फिजिकल लेयर इज बेसिकली यूज टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर द, ये बिट से कंसर्न रखती है। It basically provides physical, mechanical, and electrical specification as it will tell you about the type of the transmission medium. Next is data link layer, hop to hop delivery of frames की उसके लिए responsible है data link layer। Packet की source से destination packet, when we have to uh, destination, source to destination service, when we have to send the data from one network to another network, उसके लिए responsible है आपकी network layer।
जब हमें प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज की डिलीवरी करनी है उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर, व्हेन हमें डायलॉग कंट्रोल या सिंक्रोनाइजेशन, व्हेन वी हैव टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, है ना, तो आपके लिए सेशन लेयर। व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट, व्हेन वी हैव टू इनक्रिप्ट और कंप्रेस द डेटा, देन उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर। जब भी हम सिंटेक्स या सिमेंटिक्स से कंसर्न होते हैं तो उसके लिए प्रेजेंटेशन लेयर। एंड व्हेन यूजर हैव टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क, देन उसके लिए एप्लीकेशन लेयर, यूजर इंटरफेस लेयर। So these are the references I used to design this lecture. In the next lecture, we will discuss about the next model, that is your TCP IP model. Thank you for your patience listening.